Hello friends, very warm welcome to LK Academy. I hope every one of you is safe and doing well at your home and you have gone through all the previous current affairs lectures. So today we have come to the lecture number 39 and today we will start our lecture by the quote that is stay positive, stay fighting, stay brave, stay ambitious, stay focused and stay strong. So all this is applicable to all of us in this डिफ़िकल्ट सिचुएशन. तो आने वाली जो भी एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग, कीप रीडिंग एंड यू विल बी सॉर्टेड. इसी के साथ आज का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है करंट अफेयर्स का, दैट इज़ द क्वाइट एन ईजी टॉपिक, दैट इज़ नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड्स. तो देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि जिन लोगों ने या जिन एजेंसीज़ ने एनर्जी कंजर्वेशन सेक्टर में काम किया होगा या अच्छे इनिशिएटिव लिए होंगे उनको ये अवार्ड दिया जाएगा. सो रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ पावर in association with the Bureau of Energy Efficiency, that is known as BEE or B, organized the 30th National Energy Conservation Awards function. During this event, the standard and labeling program for air compressors and ultra high definition TV on voluntary basis was initiated and the Sathi portal was also launched. So what is important for us is that Sathi portal was launched at the 30th National Energy Conservation Award function. Now what is this National Energy Conservation Award program? So the Ministry of Power had launched a scheme in 1991 to give national recognition through awards to the industries and establishments that have taken special efforts to reduce energy consumption while maintaining their production. The awards were given away for the first time on the 40th December 1991, which was declared as the National Energy Conservation Day. It recognizes the energy efficiency achievements in 56 subsectors across the industry, establishments and institutions. During the award ceremony, it was specifically mentioned that the impact of PAT cycle 2 achieved emission reduction of 61 million ton of CO2. Okay, now what is this PAT cycle? That we will see in the next slide. तो देखिए इस स्लाइड से आपको बेसिकली ये समझ में आ रहा है कि 1991 में इंडस्ट्री में जो एनर्जी कंजप्शन होता है उसको कैसे रिड्यूस किया जा सके, उसमें क्या क्या नए तरीके इजाद किए जा रहे हैं, इन सारी चीज़ों को, इन सारी इनिशिएटिव को ध्यान में रखते हुए उन एजेंसीज़ को, उन इंडस्ट्रीज़ को, उन सेक्टर्स को एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड दिया जाता है. नाउ व्हाट इज़ द पैट स्कीम? दैट इज़ परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड स्कीम. So it is a market-based mechanism to further accelerate as well as incentivize energy efficiency in the large energy incentive industries. It provides the option to trade any additional certified energy savings with other designated consumers to comply with the specific energy consumption reduction targets. अगर आपने AC या रेफ्रिजरेटर का भी ध्यान से देखा हो तो आपको वहाँ पे एक येलो स्टिकर विथ 5 स्टार्स वहाँ पे लगा हुआ दिखेगा और 5 स्टार्स में वो प्रोडक्ट, ओके, XYZ आपका AC हो या रेफ्रिजरेटर हो, वो जितना एनर्जी एफिशिएंट होगा, वो जितनी कम एनर्जी यूज़ करता होगा, उतना स्टार्स रेड मार्क करके आपको वहाँ पे दिया होगा. सो it provides the option to trade any additional certified energy savings with other designated consumers to comply with the specific energy consumption reduction targets. It is being implemented by BEE as a flag bearer, which has not only demonstrated its promise in the country but also has found interest among many other countries. तो इंडिया का जो 1 स्टार 2 स्टार जो रेटिंग प्रोग्राम है उसको देखकर बाकी सारे कंट्रीज़ ने भी अपने तरीके से अपने यहाँ पर ऐसे एनर्जी कंजर्वेशन के जो प्रोग्राम्स है वो स्टार्ट किए हैं. Now what is Sathi portal? So the Bureau of Energy Efficiency has developed a management information system portal, namely state-wise action on annual targets and headways on energy efficiency, that is known as Sathi. तो इस पोर्टल को भी लॉन्च किया गया है, which is basically a management information system. पूरी एक सेंट्रलाइज्ड रेपोजिटरी बना दी गई है और उसको साथी पोर्टल पे टाइम टू टाइम अपडेट किया जाएगा टू कीप द मार्केट अप टू डेट. ओके, नाउ
it is a portal for state designated agencies for state level activities. Captures the status of energy efficiency. It will be useful in capturing the physical and financial status progress of energy efficiency activities being implemented by states or UTs across the country. Thus, it will facilitate real time monitoring, streamlines decision making and compliance. It will also help in decision making, coordination, control, analysis, and implementation of and enforcement of the compliance process for various energy consumer at the pan India लेवल. तो किस तरह से पॉलिसी को बनाना है और नेशनल लेवल उसको भी इस पोर्टल से मॉनिटर किया जाएगा. एंड वी हैव 3 साथी और 7 similar kind of a projects. So one is साथी, दैट इज सोफिस्टिकेट एनालिटिकल एंड टेक्निकल हेल्प इंस्टीट्यूट. तो उसके बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है, किससे रिलेटेड है. साथी जो कि अभी हम related to Ministry of Textiles, and the other one is SATH, Sustainable Action for Transforming Human Capital Program, and it is the program of नीति आयोग. तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है. ओके, देखिए स्पेलिंग हर किसी की अलग अलग है. दिस इज SAATHEE and this is the Sathi SAATHI. Okay, so you have to be careful while answering the question. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज चाइनाज राइजिंग इन्फ्लुएंस इन साउथ एशिया. सो रिसेंटली चाइना ने एक कॉन्फ्रेंस करी है, एक मीटिंग करी है जिसमें इंडिया को बुलाया नहीं गया. ओके, सो विदाउट इंडिया एशिया पैसिफिक के कंट्रीज़ के साथ चाइना ने ये कॉन्फ्रेंस करी है. सो चाइना हैज़ हेल्ड इट्स थर्ड मल्टीलेटरल डायलॉग virtually with countries from South Asia to take forward closer cooperation on fighting COVID-19 and coordinating their economic agendas, reflecting a new approach in Beijing's outreach to the region. तो देखिए इंडिया ऑलरेडी एशिया पैसिफिक के काफ़ी सारे जो प्लेटफॉर्म्स है उसका हिस्सा रह चुका है. अब जब चाइना when China is trying to reach out to the nations of Asia Pacific, India should be there, but India is not there. Why? Because the relation at this point is not good between India and China. So participating countries कौन से थे? It brought together every country in the region barring India, Bhutan and Maldives, and was aimed at anti-epidemic cooperation and poverty reduction cooperation. The recent meeting was attended by all 5 countries that have taken part in these dialogues. कौन से थे? वो थे पाकिस्तान, नेपाल, Afghanistan, Sri Lanka and Bangladesh. All 3 dialogues have been attended by Pakistan and Nepal. तो नेपाल के साथ भी हमारा काला पानी एंड लिम्पियाधुरा को लेकर बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है. Engagements through other platforms. So previously at the July quadrilateral dialogue with Afghanistan, Nepal and Pakistan, China's proposed extending the CPEC, that is China Pakistan Economic Corridor, जिसका इंडिया अपोज कर रहा है एंड इंडिया इज़ नॉट रेडी टू ये CPEC पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से होकर जाए. So CPEC to Afghanistan, as well as taking forward an economic corridor plan with Nepal called the Trans-Himalayan Multi-Dimensional Connectivity Network. Other initiatives by China to enhance engagement in South Asia. So according to the American Enterprise Institute's China's Global Investment Tracker, China has committed around $100 billion in the economics of Afghanistan, Bangladesh, Maldives, Pakistan, Nepal and Sri Lanka. China is now the largest overseas investor in the Maldives, Pakistan and Sri Lanka. तो नाउ इंडिया इज़ ऑल्सो फॉलोइंग दी सेम स्ट्रेटेजी. इंडिया भी इन सारे जो नेबरहुड हमारे छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं वहाँ पे इंडिया अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा है. और जब भी कोई नेचुरल कैलेमिटी हो या जब उस नेबरिंग कंट्रीज़ में किसी भी चीज़ के लिए अगर ज़रूरत हो, सो इंडिया इज़ द फर्स्ट वन टू हेल्प. इंडिया ने काफ़ी सारे इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं फ्रॉम द 2014. नाउ अफगानिस्तान के साथ अब हमारे रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं. अफगानिस्तान इज़ द क्लोज्ड एलाई ऑफ इंडिया. सो बीजिंग वाज अ पार्ट ऑफ अ ट्राइलेटरल चाइना पाकिस्तान अफगानिस्तान फॉरेन मिनिस्टर्स डायलॉग विच फोकसेस ऑन फैसिलिटेटिंग
Afghan domestic political reconciliation, enhancing regional connectivity, and improving regional common development. The trilateral discussions also agreed to push forward under the Belt and Road Initiative and to enhance connectivity by extending the CPEC to Afghanistan. अब जब अफगानिस्तान कोई ऐसे प्लेटफॉर्म पे हिस्सा ले रहा है जहाँ पे इंडिया उसका पार्ट नहीं है, सो इंडिया ने ऑलरेडी ये कन्वे कर दिया है अफगानिस्तान को कि चाइना के साथ अगर आप क्लोजर टाइज बना रहे हो तो वो हमारे रिलेशन के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं होगा. ओके, सेम विद बांग्लादेश. बांग्लादेश भी हमारा close ally hai. So China and Bangladesh pledged to deepen defense cooperation, especially in the areas of defense industry and trade, training, equipment and technology. China is also the largest arms supplier of the Bangladeshi military, providing 71% of aid of weapons from 2008 to 2018. नेक्स्ट इज़ भूटान. भूटान ने चाइना के साथ कोई भी डिप्लोमेटिक टाइज नहीं रखे हैं. क्यों? क्योंकि भूटान 90% डिपेंड करता है इंडिया पे. ओके, फॉर अगर उसको किसी भी एक्सटर्नल अफेयर्स की अगर ज़रूरत हो तो वो सीधा सीधा इंडिया पे डिपेंड करता है, राइट. उसके जो सिविल सर्वेंट्स है भूटान के वो भी इंडिया में उनको ट्रेन किया जाता है. तो इंडिया और भूटान के जो रिलेशन है वो इतने डीप है कि भूटान ऑलवेज विल बी ऑन द साइड ऑफ इंडिया. लाइक नेपाल की तरह वो नहीं है. नेपाल में क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट अभी तक चल रही थी, उनका झुकाव किसकी तरफ था? चाइना की तरफ था. Maldives. So China's relationship with the Maldives is near exclusively focused on leveraging BRI to develop Maldives as well as to raise Chinese influence there to counter India. Okay, अब मालदीव्स में भी इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है. इवन मालदीव्स के साथ हमारे कल्चरल टाइज भी काफ़ी अच्छे हैं, तो चाइना वो नहीं चाहता एंड दैट्स वाई चाइना इज़ रेजिंग देयर इन्वेस्टमेंट. नेपाल. सो चाइनीज़ प्रेसिडेंट वेंट टू नेपाल इन 2019. दिस वाज द फर्स्ट विजिट बाय अ चाइनीज़ हेड ऑफ द स्टेट इन लास्ट 23 years. The countries have signed agreements to accelerate infrastructure building in Nepal and improve connectivity between them. Both the countries have also announced the launch of a feasibility study of the China-Nepal cross-border railway. तो नेपाल के साथ 2017-18 तक हमारे रिलेशन काफ़ी अच्छे चल रहे थे, बट क्योंकि वहाँ की जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है वो चाइना की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के साथ मिलकर अपनी पॉलिसीज़ बना रही थी, तो नेपाल में चाइनीज़ इन्फ्लुएंस धीरे धीरे बढ़ रहा था. और क्योंकि चाइनीज़ इन्फ्लुएंस बढ़ा, वहाँ पे एंटी इंडिया जो इमोशन है वहाँ पे वो ज़्यादा बढ़ गया. एंड दैट्स वाई नेपाल ने पिछले ही कुछ महीनों में काला पानी और लिम्पियाधुरा के जो इलाके थे, जो कि इंडिया क्लेम कर रहा है कि वो उसके इलाके हैं, वहाँ पे जब इंडिया ने कंस्ट्रक्शन करना स्टार्ट किया तो नेपाल ने अपना विरोध वहाँ पर दर्ज करवाया कि दीज आर नेपालीज टेरिटरी, आप वहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते. और नेपाल ने अपनी संसद में, अपनी पार्लियामेंट में नया मैप भी वहाँ पे पास कर दिया, जिसका इंडिया ने इंटरनेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे उसको अपोज किया था. श्रीलंका के साथ भी इंडिया के अच्छे रिलेशन है और श्रीलंका चाइना के साथ काफ़ी बड़ी डेप्ट में है. ओके, वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट हम्बनटोटा पोर्ट. सो श्रीलंका हैंडेड ओवर हम्बनटोटा पोर्ट ओवर 99-year लीज टू चाइना टू रीपे इट्स लोन बैक टू चाइना. हम्बनटोटा इज जियो स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड ऑन द इंडियन ओशन, पोटेंशियली bolstering Beijing's string to pearls. कंसर्न्स फॉर इंडिया क्या हो गए? सो सिक्योरिटी कंसर्न है बेसिकली, ग्रोइंग कोऑपरेशन बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना, ग्रोइंग कोऑपरेशन बिटवीन नेपाल एंड चाइना, एक्सेप्टेंस टू चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बाय साउथ एशियन कंट्रीज़. इंडिया वो ट्राइंग कि बांग्लादेश को भी इसका अपोज करना चाहिए, श्रीलंका को भी इसका अपोज करना चाहिए, नेपाल को भी इसका अपोज करना चाहिए, बट ऐसा होता हुआ हमें नहीं दिख रहा है, तो वो इंडिया के लिए एक सेटबैक है. Leadership roles in South Asia. It shows increasing Chinese presence in South Asia and its acceptance by the countries as a torchbearer for the region which India wants for itself. Economic concerns क्या हो गए? So over the past decade, China has replaced India as the major trading partner of several South Asian countries. For instance, the share of India's trade with Maldives was 3.4 times that of China's in 2008,
but by 2018, China's total trade with Maldives slightly exceeded that of India. China's trade with Bangladesh is now about twice that of India. China's trade with Nepal and Sri Lanka still lags India's trade with those countries, but the gap has shrunk. ओके, तो नेपाल और श्रीलंका के साथ इंडिया का ट्रेड ज़्यादा है, बट चाइना इज़ ट्राइंग टू सरपास दैट एज वेल. चाइना ये ट्राई कर रहा है कि इंडिया को पीछे छोड़ दिया जाए, हर कंट्रीज़ में उनका इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा होना चाहिए. अब चाइना के इन्वेस्टमेंट को काउंटर करने के लिए अगर आपको याद हो तो ब्लू डॉट नेटवर्क बनाया गया है, जिसको एस्टेब्लिश किया था यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट्स ने, कंट्रीज़ ने, और बाद में इंडिया को उसमें ज्वाइन करने के लिए इनवाइट किया गया था. ओके, तो वो बेसिकली यही है कि क्योंकि चाइना का राइजिंग इन्वेस्टमेंट है बेसिकली इन दी एशिया पैसिफिक एंड अफ्रीकन रीजन, तो उन कंट्रीज़ को उसकी फिजिबिलिटी सही बताने के लिए ब्लू डॉट नेटवर्क लाया गया था. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ प्रवासी भारतीय दिवस. सो प्रवासी भारतीय दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन 9th of January एवरी ईयर टू मार्क द कंट्रीब्यूशन ऑफ ओवरसीज इंडियन कम्युनिटी इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया. जो एनआरआईज है, जो नॉन रेसिडेंट इंडियंस है, वो किस तरीके से इंडिया के डेवलपमेंट में अपना हिस्सा दे सकते हैं, उसको बढ़ावा देने के लिए, उस थॉट को बढ़ावा देने के लिए प्रवासी भारतीय दिवस मनाना स्टार्ट किया गया था, और वो मनाया जाता है 9th of January को. ऑन द ओकेजन सेवरल इवेंट्स सच एज पीबीडी कन्वेंशन, प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड एंड भारत को जानिए क्विज आर ऑर्गेनाइज्ड बाय डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट्स. बैकग्राउंड क्या है इसका? सो 9th January वॉज चोजन एज द डे टू सेलिब्रेट पीबीडी सिंस it was on this day in 1915 Mahatma Gandhi, the greatest प्रवासी, returned to India from South Africa. और उसके बाद महात्मा गांधी ने आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका उन्होंने इंडिया में इंडिपेंडेंस की जो नींव थी वो इंडिया में रखी थी, और अलग अलग नॉन वायलेंस मूवमेंट इंडिया में स्टार्ट किए थे. एंड दैट्स वाई 9th January के दिन को चुना गया है टू सेलिब्रेट एज प्रवासी भारतीय दिवस. लेड इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल एंड चेंज्ड द लाइव्स ऑफ इंडियंस फॉर एवर. ओके, तो उस कंट्रीब्यूशन को सेलिब्रेट करने के लिए प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है. कब मनाया जाता है? पीबीडी कन्वेंशन. पीबीडी कन्वेंशन इज प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन. उसका जो फंक्शन होगा दैट इज नोन एज पीबीडी कन्वेंशन. सो दीज आर हेल्ड वंस एवरी 2 years. PBD 2021. So the 16th PBD convention was held virtually in New Delhi. The theme was contributing to Atmanirbhar Bharat. चीफ गेस्ट कौन था इसके लिए? सो प्रेसिडेंट ऑफ सूरीनाम चंद्रिका प्रसाद संतोखी. देखिए, सूरीनाम, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो ये ऐसे कंट्रीज़ है जहाँ पे इंडियन कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा है. सो इंडिया इज़ ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस दोज पीपल ऑफ सूरीनाम, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो. तो ऐसे जो छोटे छोटे कंट्रीज़ है जिनको गिरमिटिया कंट्रीज़ कहा जाता है, वहाँ से स्लेव्स के तौर पर इंडियंस को वहाँ ले जाया गया था. सो वहाँ पे आज भी हिंदी बोली जाती है. डायलेक्ट इज़ डिफरेंट बट स्टिल हिंदी इज़ स्पोकन देयर. तो वहाँ के प्रेसिडेंट को इसमें पार्ट लेने के लिए बुलाया गया था. हाइलाइट्स क्या रहे? सो पेंडेमिक के बारे में, कोविड-19 के बारे में बात की गई कि इंडिया ने किस तरीके से, या इंडियन कम्युनिटी ने अलग अलग कंट्री में किस तरीके से रिस्पॉन्ड किया ड्यू टू कोविड-19 लॉकडाउन और उसके पोस्ट सिचुएशन में. सो डिस्पाइट डिपेंडेंस ऑन क्रिटिकल थिंग्स लाइक पीपीई किट्स, मास्क, वेंटिलेटर्स और टेस्टिंग किट्स, इंडिया डेवलप्ड इट्स कैपेबिलिटीज नॉट ओनली टू बिकम सेल्फ रिलायंट बट स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग मैनी थिंग्स. हमें पता है कि India is the largest producer of PPE kit. India's drugs regulator has approved the Oxford COVID-19 vaccine Covishield manufactured by the Serum Institute and the indigenously developed Covaxin of Bharat Biotech for restricted emergency use in the country. Initiatives for Indian diaspora क्या लिए गए हैं? So Vande Bharat mission in which more than 45 lakh Indians were rescued during Corona times, and it numbers are still इंक्रीजिंग. अभी भी वंदे भारत की जो फ्लाइट्स है दोज आर ऑपरेटिंग. इंडिया ये ट्राई कर रहा है कि उसका एक भी सिटीज़न ड्यू टू कोविड-19 की वजह से कहीं भी अटका ना पड़ा हो, और इसीलिए एयर बबल के अंडर में वंदे भारत मिशन को स्टार्ट किया गया था. ओके, एंड
ड्यूरिंग कोविड-19 ऑल्सो देयर आर मल्टीपल कंट्रीज़, गल्फ़ के कंट्रीज़ थे, यूरोप के कंट्रीज़ थे, तो उन वहाँ पे पूरी तरह से लॉकडाउन था, उनके एयरपोर्ट्स काम नहीं कर रहे थे। बट क्योंकि इंडिया के डिप्लोमेटिक रिलेशन कुछ-कुछ पर्टिकुलर कंट्रीज़ के साथ इतने अच्छे थे कि उन कंट्रीज़ ने इंडियन फ्लाइट्स को अलाउ किया, इंडियन गवर्नमेंट को अलाउ किया टू ऑपरेट देयर फ्लाइट्स एंड रेस्क्यू इंडियन सिटीजन्स। तो ये भी हमारा एक पैरामीटर है टू मेजर अवर फॉरेन पॉलिसी। स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट, जिसको जो कि पोर्टल है स्वदेश पोर्टल, एन इनिशिएटिव फॉर रिटर्निंग इमिग्रेंट्स फ्रॉम द गल्फ एंड अदर एरियाज। ग्लोबल प्रवासी रिश्ता पोर्टल फॉर बेटर कनेक्टिविटी एंड कम्युनिकेशन विद द प्रवासी भारतीय। हमारे प्राइम मिनिस्टर कई बार ये अपील कर चुके हैं कि आइए साल में कुछ महीने, ओके 1 महीने 2 महीने 3 महीने भारत में रहकर जाइए। इससे क्या होगा कि जो लोकल टूरिज़्म है वो बढ़ेगा और आपके जो बच्चे हैं, ओके, जो कि यूएसए, यूके या इंडिया से बाहर रहते हैं, उनको एक मौका मिलेगा कि वो इंडियन कल्चर के साथ, अपने रूट्स के साथ वापस जुड़ सके। एंड व्हाट इज़ प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड? सो इट इज़ द हाईएस्ट ऑनर conferred on a non-resident Indian person of Indian origin or an organization or institution established and run by non-resident Indians or persons of Indian origin who have made significant contribution in better understanding of India abroad, supporting India's causes and concerns in a tangible way, community work abroad, welfare of local Indian community abroad, philanthropic and charitable work, etc. तो अगर आप इस कैटेगरी में हो, ओके, आप बाहर रह रहे हो, आप कोई ऐसी एजेंसी को हेड कर रहे हो, इफ़ यू आर नॉन रेसिडेंट इंडियन, आपने अगर काफ़ी ज़्यादा फंड इंडियन लोकल कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए दिया है, स्कूल बनाने के लिए या हॉस्पिटल्स बनाने के लिए XYZ, या आप कोई एनजीओ रन कर रहे हो और उस अगर एनजीओ ने सिग्निफिकेंट काम किया है टू एड्रेस इंडियाज़ कंसर्न्स, टू एड्रेस इंडियाज़ प्रॉब्लम्स, तो आपको प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया जाएगा। ड्यूरिंग द पीबीडी कन्वेंशन, सिलेक्ट एमिनेंट इंडियन डायस्पोरा मेंबर्स आर अवॉर्डेड द प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड्स इन द प्रेजेंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए कितना बड़ा सम्मान, कितनी बड़ी रिस्पेक्ट उनको दी जा रही है कि इन प्रेजेंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनको ये प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड दिया जा रहा है। 30 विनर्स ऑफ द 2020 अवार्ड, तो 2021 में ऐसे 30 नॉन रेसिडेंट इंडियंस को चुना गया है जिनको प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड दिया गया है। उनमें से सूरीनाम के जो प्रेसिडेंट है चंद्रिका प्रसाद संतोखी, काराकाओ प्राइम मिनिस्टर एग्यूएन रुगुनाथ एंड न्यूजीलैंड मिनिस्टर प्रियंका राधाकृष्णन भी शामिल है अमोंग दीज 30 विनर्स। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मुकुंदपुरा मेटियोराइट। A recent study has shed light on the mineralogy of the meteorite named Mukundpura CM2 which fell in Mukundpura village near Jaipur in 2017। तो देखिए बेसिकली उल्का मान लीजिए, स्पेस से जो स्पेस डेब्रीज है या ऐसा कोई एलिमेंट विच इज़ एन फॉरेन एलिमेंट टू अर्थ, वो जब आके ज़मीन पर गिरेगा और वो कोई अफेक्ट करेगा इन द लोकल बायोडाइवर्सिटी, उसको क्या कहा जाएगा? मेटियोराइट कहा जाएगा। अ मेटियोराइट इज़ अ सॉलिड पीस ऑफ डेब्रीज फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट सच एज अ कॉमेट, एस्ट्रॉइड और मेटियोरॉइड दैट ओरिजिनेट्स इन द आउटर स्पेस and survives its passage through the atmosphere to reach the surface of a planet और मून। अगर इतनी फोर्स से वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में दाखिल होगा तो वो उसका जल जाना इज़ द ऑब्वियस आउटकम। बट अगर वो उस आउटकम को ओवरकम करके, उसको सरपास करके अगर अर्थ तक पहुंच जाता है तो उसको क्या कहा जाएगा? मेटियोराइट कहा जाएगा। और ये मुकुंदपुरा मेटियोराइट के बारे में थोड़ी बात करेंगे। सो मेटियोराइट named Mukundpura CM2 was classified to be carbonaceous chondrite, a composition of carbonaceous chondrite also similar to the sun. Chondrites are silicate droplet bearing meteorites and the Mukundpura chondrite is the 5th carbonaceous meteorite known to fall in India.
मेट्योराइट का क्लासिफिकेशन कैसे होगा? सो मेट्योराइट्स आर क्लासिफाइड इन 3 ग्रुप्स. फर्स्ट इज स्टोनी, देन आयन एंड स्टोनी आयन. तो एक होगा जो फुल स्टोन से बना होगा, उसमें कोई मेटल का पार्ट नहीं होगा या बिल्कुल कम होगा. ओके, देन नेक्स्ट इज आयन, FeNi एलॉय होगा. एंड the next one is a stony iron, mixed silicate iron alloy. So Mukundpura CM2 is a type of stony meteorite, considered the most primitive meteorite and the remnant of the first solid bodies to accrete in the solar system. तो इसका जो कंपोजिशन है वो सिमिलर टू सन है, एंड दैट्स वाई साइंटिस्ट्स आर स्टडिंग इट. जो कि गिरा था मुकुंदपुरा विलेज में, और इसीलिए उसको नाम दिया गया था मुकुंदपुरा मेट्योराइट. मुकुंदपुरा CM2 इज हिज नेम गिवन बाय साइंटिस्ट. कंपोनेंट्स ऑफ मेट्योराइट क्या होंगे? सो डिटेल्ड स्पेक्ट्रोस्कोपिक studies revealed that meteorite had a very high phyllosilicate minerals comprising both magnesium and iron. Forsterite and FeO, olivine, calcium, aluminium rich inclusion minerals. Few magnetites, sulfides, aluminium complexes and calcites were also found in the meteorite. Importance of studying asteroid. ओके, जो फॉरेन ऑब्जेक्ट्स है जो अर्थ में आके गिरे हुए हैं, पड़े हुए हैं, उनको स्टडी करना क्यों ज़रूरी है? ताकि हम स्पेस को और बेहतर तरीके से जान सके. दैट इज़ दी ओनली एम. So understanding of solar system's history, how the solar system evolved into the sun and planets of today, the effects of impact of meteorites. They are often rich in volatiles and other minerals and can be exploited for future planetary exploration. तो सारे स्पेस को ज़्यादा डीप से जानने के लिए वी आर स्टडिंग एस्ट्रॉइड्स. डिफरेंस बिटवीन मेटियोर, मेटियोराइट एंड मेटियोरॉइड. सो व्हेन meteoroids enter Earth's atmosphere at high speed and burn up, the fireballs or shooting stars are called meteors. तो वो जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होते हैं, सो दे कैन नॉट सर्वाइव दी अर्थ्स एटमॉस्फेयर, और वो बर्न हो जाएंगे, वो जल जाएंगे. तो उसकी जो डेब्रीज होगी, उसके जो फायरबॉल्स होंगे, वो जब गिरेंगे, दैट इज नोन एज meteors. When a meteoroid survives a trip through the atmosphere and hits the ground, it is called a meteorite. ओके, तो हमने अभी जो स्टडी किया दैट इज़ अ मुकुंदपुरा मेट्योराइट. इसका क्या मतलब है? कोई बड़ा सा फॉरेन ऑब्जेक्ट आकर मुकुंदपुरा में गिरा है. क्यों? क्योंकि उसने अर्थ के एटमॉस्फेयर को सर्वाइव कर लिया, एंड दैट्स वाई इट इज़ नोन एज मेट्योराइट. ओके, एंड दिस आर दी फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको यहाँ पे दिया गया है विद दी सेम क्लासिफिकेशन, सेम एक्सप्लेनेशन. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू रोड एंड हाईवेज एंड ऑल्सो रिलेटेड टू पोल्यूशन. सो कैफे 2 रेगुलेशंस एंड BS6 स्टेज 2 नॉर्म्स. तो देखिए, अगर आपको पता है कि व्हाट इज़ BS6, तो आपके 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स में जो इंजिन्स है वो एटमॉस्फेयर के साथ, एनवायरनमेंट के साथ कंप्लाई करने चाहिए. वो एनवायरनमेंट को कम से कम नुकसान पहुंचाने चाहिए और ज़्यादा एफिशिएंट होने चाहिए. सो इंडिया हैज़ ऑलरेडी मूव्ड टू BS6 नॉर्म्स. बट अब जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री हमारी, क्योंकि कोविड-19 की वजह से पिछले 7-8 महीने में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो थे वो पूरी तरह बंद पड़े हुए थे. तो इसीलिए ऑटोमोटिव इंडस्ट्री ये चाहती है कि जो गोल है, जो आप अप्लाई करने वाले हो BS6 नॉर्म्स को और कैफे 2 रेगुलेशंस को, उसको भी थोड़ा एक्सटेंड कर दिया जाए, taken into consideration the COVID-19 effects. So the auto industry has requested the government to defer the implementation of corporate average fuel efficiency regulations and BS6 stage 2 norms to April 2024, given the impact of the lockdown measures. ओके, तो ये लोग ये क्या बोल रहे हैं, ये जो इंडस्ट्री है ऑटोमेटिव इंडस्ट्री, कि भाई आप अप्रैल 2024 को अप्लाई कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है. जबकि गवर्नमेंट का जो अर्लियर गोल था वो क्या था, कब अप्लाई होने वाले थे? सो एज ऑफ नाउ द कैफे 2 नॉर्म्स एंड BS6 स्टेज 2 नॉर्म्स आर सेट टू come into effect in 2022 and April 2023 respectively. तो ऑटो इंडस्ट्री ये चाहती है कि ऑलमोस्ट 1.5 से 2 सालों के लिए उसको पीछे कर दिया जाए और अप्रैल 2024 में उसको एक साथ पूरे देश में लागू कर दिया जाए
given the effect of COVID-19. Now, what is CAFE 2 regulations? So it is corporate average fuel efficiency regulations. CAFE or corporate average fuel efficiency economy regulations are in force in many advanced as well as developing nations, including India. They aim at lowering fuel consumption. इसका क्या मतलब हुआ कि फ्यूल की जो एफिशिएंसी है उसको क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए. ऑल्टरनेटिव फ्यूल की क्या ऑप्शन है उसको ढूंढा जाए. ऑफ व्हीकल्स बाय लोअरिंग कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस. पीयूसी सर्टिफिकेट अपना निकलवाते हो, राइट? सो व्हाट पीयूसी मेजर क्या करता है? पोल्यूशन अंडर कंट्रोल. तो अगर आपका व्हीकल जो है वो अगर ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर अगर थ्रो करता है एटमॉस्फेयर में, तो गवर्नमेंट आपकी गाड़ी को क्या कर देगी? बैन कर देगी. यू आर नॉट अलाउड टू रन दैट व्हीकल. सो दे एम एट लोअरिंग फ्यूल कंजप्शन ऑफ व्हीकल्स बाय लोअरिंग कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस, thus serving the twin purpose of reducing dependence on oil for fuel and controlling pollution. Corporate average refers to sales volume weighted average for every auto manufacturer. The idea of CAF is to push manufacturers to achieve fuel efficiency targets by producing and selling more fuel efficient models including electric vehicles. तो अब तो पूरा इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर गवर्नमेंट काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी गवर्नमेंट कर चुकी है. रिसर्च आर गोइंग ऑन कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को किस तरह से ज़्यादा एफिशिएंट बनाया जा सके. इंडिया में कब ये लॉन्च किया गया था? सो द कैफे स्टैंडर्ड्स वर फर्स्ट नोटिफाइड इन 2017 बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर अंडर एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001. The regulation is in accordance with the fuel consumption standards of 2015 that aim to increase the fuel efficiency of vehicles on road by 35% by 2030. The Ministry of Road Transport and Highways is the nodal agency to apply all these changes, responsible for monitoring and reporting a summary of annual fuel consumption by automobile manufacturers at the end of each fiscal year. The regulation was introduced in two target phases: carbon dioxide emission target of 130 gram per kilometer by 2022-2023 and 113 gram per kilometer 2023 onwards. तो ये टारगेट लेकर वी आर ट्राइंग टू सेट कैफे 2 नॉर्म्स इन इंडिया, जिसको अब ऑटो इंडस्ट्री चाहती है कि 2024 तक उसको पोस्टपोन कर दिया जाए ताकि इंडस्ट्री पूरी तरह से रेडी हो सके to comply with all the rules and regulations. Applicability क्या होगी? So the norms are applicable for petrol, diesel, liquefied petroleum gas and compressed natural gas passenger vehicles. BS6 stage 2 norms क्या है? So Bharat stage emission standards are laid down by the government to regulate the output of air pollutants from internal combustion engine and spark ignition engine equipment including motor vehicles. These standards are targeted at making improvements in three areas: emission control, fuel efficiency and engine design. अगर engine design में ही ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी ला दिया जाए कि पोल्यूशन कम हो, तो बाकी सारे जो टारगेट्स है वो ऑटोमेटिकली अचीव हो जाएंगे. सो इंडिया हैज़ ऑलरेडी अप्लाइड BS4 स्टेज 1 नॉर्म्स, बस उसको भी फेज वाइज मैनर में धीरे धीरे अप्लाई किया जाएगा अक्रॉस द कंट्री. द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ मैंडेटेड दैट व्हीकल मेकर्स मस्ट मैन्युफैक्चर, सेल एंड रजिस्टर ओनली BS6 व्हीकल्स फ्रॉम 1st April 2020. BS6 is equivalent to Euro 6 norms currently in place across countries in Europe. देखिए अब बेसिकली ये क्या चीज़ है कि आपका जो व्हीकल है, चाहे वो 2 व्हीलर हो, चाहे 4 व्हीलर हो, चाहे उससे बड़े व्हीकल हो, वो कम से कम पोल्यूशन फैलाना चाहिए. उसके लिए जो स्टैंडर्ड डिसाइड किए गए हैं बाय द गवर्नमेंट, और वो स्टैंडर्ड के हिसाब से ही मैन्युफैक्चर कंपनीज जो है इंडिया में XYZ कंपनी है, उनको अपने इंजन डिज़ाइन करने पड़ेंगे और अपनी गाड़ियाँ हैं वो बनानी पड़ेगी. अगर वो BS6 नॉर्म को मीट नहीं कर पाते हैं तो दे आर नॉट अलाउड टू मैन्युफैक्चर अ सिंगल पीस, राइट. वो गवर्नमेंट उसके ऊपर बैन लगा देगी. तो उसको मीट करने के लिए ईच एंड एवरी कंपनी इज़ नाउ ट्राइंग. एज पर BS6 एमिशन नॉर्म्स, पेट्रोल vehicles will have to effect a 25% reduction in their NOx, that is a nitrogen oxide emissions. Diesel engines will have to reduce their hydrocarbon plus nitrogen oxide by 43%.
their NOx levels by 68% and particulate matter levels by 82%. Sulfur content in fuel is a major cause for concern. BS6 fuels sulfur content is a much lower than BS6 fuel. It is reduced to 10 mg per kg max in BS6 from 50 mg per kg under BS6. Okay, so सम ऑफ द मेजर्स टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन 2023, बट अब गवर्नमेंट उस पर डिसाइड करेगी, क्योंकि ऑटो इंडस्ट्री ने ऑलरेडी बोल दिया है कि 2023 तक इसके जो गोल्स है उसको हम मैच नहीं कर पाएंगे. सो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है दैट इज़ डिमांड फॉर ऑटोनॉमस रीजन इन असम. सो असम का जो एक ट्राइबल ग्रुप है, दे आर डिमांडिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर एन ऑटोनॉमस रीजन विद इन दी आसाम स्टेट. ओके, फॉर आसाम के बारे में हमने 2019 में और अर्ली 2020s में बोडो लैंड के बारे में हमने ऑलरेडी बात की थी कि असम के जो 4 डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे बोडो कम्युनिटी की पॉपुलेशन ज़्यादा है, उनको बोडो ऑटोनॉमस रीजन के तौर पर मंजूरी दे दी गई थी और बोडो अकॉर्ड को साइन कर लिया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट और आसाम गवर्नमेंट के बीच और बोडो के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनके बीच. तो ये 3 पार्टी अग्रीमेंट वाज साइंड एट दैट टाइम. अगेन वहाँ पे एक ट्राइबल ग्रुप जो है वो ये डिमांड कर रहा है कि उनको ऑटोनॉमस रीजन देना चाहिए और ये डिमांड कोई नई नहीं है. 1985-86 से ये डिमांड स्टार्ट हो गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास. सो देयर हैज़ बीन अ डिमांड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आर्टिकल 244A फॉर द क्रिएशन ऑफ एन ऑटोनॉमस स्टेट विद इन आसाम. क्या होगा वो और क्यों ऐसी डिमांड की जा रही है? सो द अपील टू द सेंटर हैज़ बीन फॉर द क्रिएशन ऑफ ऑटोनॉमस स्टेट फॉर द कार्बी आंगलोंग region. This has been a demand since 1986 and the districts are currently governed by 2 autonomous councils, Karbi Anglong and North Chachar Hills. तो इनको मर्ज करके दे आर सेइंग कि कार्बी आंगलोंग रीजन ऑटोनॉमस बना दिया जाए ताकि कुछ फैसले जो है वो लोग ऑटोनॉमी के तौर पर वहाँ पर ले सकें. डेफिनेशन ऑफ scheduled and tribal areas. So the areas inhabited by the socially and educationally backward aboriginals are called scheduled areas. Administration of scheduled and tribal areas कैसे होगा? So there are 2 schedules in our constitution, that is 5th and 6th of the Indian constitution, which entail the details about the control and management of the scheduled and tribal areas. 5th schedule of the Indian constitution क्या कहता है? So this provisions regarding the administration and control of scheduled and tribal areas of any state except the 4 states, okay, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, इन 4 राज्यों को छोड़कर स्केड्यूल्ड और ट्राइबल एरियाज अगर और किसी भी राज्य में होंगे तो उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे किया जाएगा वो लिखा गया है 5th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में. एट प्रेजेंट 10 स्टेट्स नेमली आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान एंड तेलंगाना हैव 5th शेड्यूल एरियाज. ओके, अब यहाँ पे होमवर्क में मैं आपको एक चीज़ दे रहा हूँ. गुजरात में कौन से 5th शेड्यूल से एडमिनिस्टर जो एरियाज है ट्राइबल एरियाज है वो आपको मुझे ढूंढ के बताना है. 6th शेड्यूल में क्या लिखा गया है? सो दिस शेड्यूल डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज ऑफ द अदर 4 स्टेट. जो हमने पिछली 5th शेड्यूल में स्किप कर दिए थे वो 4 स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन 6th शेड्यूल के हिसाब से होगा और वो 4 स्टेट कौन से हैं? आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम. Scheduled and tribal areas are dealt with 2 articles. Article 244. So this article deals with the administration of the scheduled and tribal areas. It defines scheduled areas as the areas defined so by the President of India and are mentioned in the 5th schedule of the Constitution. So only President of India can define कि कौन सा एरिया स्केड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज़ की कैटेगरी में फिट होगा. और प्रेसिडेंट ऐसा किसकी रिकमेंडेशन पे करेंगे, किसकी सलाह पे करेंगे? कैबिनेट की सलाह पे ये फैसला लिया जाएगा. आर्टिकल 244A क्या कहता है? सो फॉर्मेशन ऑफ एन ऑटोनॉमस स्टेट कंप्राइजिंग सर्टेन ट्राइबल एरियाज इन असम एंड क्रिएशन ऑफ लोकल लेजिस्लेचर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और बोथ देयरफॉर.
तो एक मिनी गवर्नमेंट बनाई जाएगी अंडर द आर्टिकल 244A, ताकि उनका जो रीजनल ट्राइबल कल्चर है, जो लैंग्वेज है, एजुकेशन है, उसको प्रिजर्व किया जा सके, उसको कंजर्वेशन के लिए उसको फंडिंग मिल सके। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर ये डिमांड हो रही है कि 244A आसाम में लागू किया जा सके। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ ऑल्सो सिमिलर काइंड ऑफ टॉपिक जो कि डील करता है रिजर्वेशन से। रिजर्वेशन, सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन की दो टाइप की डेफिनेशन दी है। फर्स्ट इज़ वर्टिकल रिजर्वेशन एंड दी सेकेंड इज़ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, आरक्षण जिसको हम कहेंगे। ओके, स्कूल्स में, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में, नौकरियों में इंडिया में आरक्षण की सिस्टम आज भी अवेलेबल है। और क्यों ये लाई गई थी जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना तब, ताकि जो बैकवर्ड क्लासेस है, ओके, एसटी, एससीज, ओबीसीज, उनके बच्चों को एजुकेशन में और नौकरी में बढ़त मिल सके, वो सोसाइटी के साथ कंपेल कर सके, कंपटीशन कर सके और एक साथ खड़े हो सके। इसके लिए आरक्षण की जो आइडिया है उसको लाया गया था। सो रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट in a case has clarified the position of law on the interplay of vertical and horizontal reservations. तो आगे जाने से पहले हमें देखना पड़ेगा that what is vertical and horizontal reservation. तो वर्टिकल रिजर्वेशन क्या है? सो जो मेन रिजर्वेशन की कैटेगरी है, क्या क्या मेन रिजर्वेशन कैटेगरीज है? एससी, एसटी, ओबीसी। ओके, तो ये तीन बेसिकली मेन कैटेगरीज ऑफ द रिजर्वेशन। रिजर्वेशन फॉर scheduled caste, scheduled tribes and other backward classes is referred to as a vertical reservation. It applies separately for each of the groups specified under the law. तो 100% में से X% SC के लिए रिजर्वेशन है, Y% ST के लिए रिजर्वेशन है एंड Z% OBC के लिए रिजर्वेशन है। इसमें चेंजेस नहीं किए जा सकते। एग्जाम्पल, आर्टिकल 16(4) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्टेम्पलेट्स वर्टिकल रिजर्वेशन। तो जो इसकी जो लिमिट है वो कहाँ पे लिखी गई है? आर्टिकल 16(4). अगर बदलाव भी किया जाएगा तो आर्टिकल 16(4) में ही अमेंडमेंट किया जाएगा। नाउ व्हाट इज़ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन? अब हमारे पास काफ़ी सारे अदर रिजर्वेशन भी है, जैसे विकलांग लोगों को रिजर्वेशन दिया जाता है, आर्मी पर्सोनेल को रिजर्वेशन दिया जाता है, महिलाओं को रिजर्वेशन दिया जाता है। तो ये सारे रिजर्वेशन अगर आप ओपन कैटेगरी के रिजर्वेशन में से निकाल के दे दोगे तो ओपन कैटेगरी वालों के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में एक केस में ये क्लेरिफाई किया है कि अगर ऐसा कोई इंटरसेक्शन हो रहा है कि अगर कोई महिला एससी कैटेगरी में भी है और वो महिला भी है, तो उसको किस कैटेगरी में से रिजर्वेशन दिया जाएगा, उसको सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है अंडर द केस। So what is horizontal reservation? So it refers to the equal opportunity provided to other categories of beneficiaries such as women, veterans, the transgender community, the individuals with disabilities, cutting through the vertical categories. Example, Article 15(3) of the Constitution contemplates horizontal रिजर्वेशन। ओके, तो ये डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, व्हाट इज़ वर्टिकल रिजर्वेशन एंड व्हाट इज़ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। अब क्या है, केस क्या था ये समझते हैं। सो द हॉरिजॉन्टल कोटा इज अप्लाइड सेपरेटली टू ईच वर्टिकल कैटेगरी एंड नॉट अक्रॉस द बोर्ड। क्या मतलब हुआ इसका? सो इफ वुमेन हैव 50% हॉरिजॉन्टल कोटा, देन हाफ हॉरिजॉन्टल कोटा का मतलब क्या हो गया? देखिए, मतलब जो सब कैटेगरी है रिजर्वेशन की, ओके, नॉट द मेन कैटेगरी। तो इफ द वुमेन हैव 50% हॉरिजॉन्टल कोटा, देन हाफ ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल हैव टू बी नेसेसरीली बी वुमन इन ईच वर्टिकल कोटा कैटेगरी। ओके, मान लीजिए कि अगर आप कोई स्टेट गवर्नमेंट की ये एग्ज़ाम दे रहे हो और अगर उसमें 100 सीट्स टोटल वैकेंसीज है, अब उसमें मान लीजिए कि 50 सीट्स एससी के लिए रिजर्व की गई है, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए। ओके, तो अब देखिए, अब यहाँ पे क्या होगा, 50% अगर वुमेन रिजर्वेशन दिया गया है तो 100 में से 50 सीट तो सीधा सीधा हम एससी कैंडिडेट्स के लिए निकाल लेंगे। अब उन 50 कैंडिडेट्स में भी 50% सीट्स विल बी फिल्ड अप बाय
वुमेन, ये इसका मतलब हुआ. Okay, understood. I hope this is very clear now. So for example, if women have 50% horizontal quota, then half of the selected candidates will have to necessarily be women in each vertical quota category. अब SC में भी 50% वुमन होनी चाहिए, ST में भी 50% वुमन होनी चाहिए, OBC में भी 50% सीट्स वुमन से ही फिल्ड होनी चाहिए. Half of the all selected scheduled caste candidates will have to be women, half of the unreserved और general category will have to be women and so on. और इससे क्या होगा, जो टोटल आपका 50% वुमन का जो क्राइटेरिया होगा वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा, राइट. अब देखिए, दो आपको लगेगा कि इसमें तो फ़र्क क्या पड़ा, बट इसमें फ़र्क ये पड़ा कि अगर ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को मिक्स नहीं किया जाता तो क्या होता, हो सकता था कि 50% जो वुमेन कोटा है वो सारा जनरल कैटेगरी की लेडीज़ से भर जाता, वुमेन से भर जाता, या सारा SC की कैटेगरी की वुमेन से भर जाता. सो दैट इज़ नॉट अ जस्टिस टू अदर कैटेगरी वीमेन, और इसी की वजह से इसको लागू किया गया है, और इसीलिए ये इंटरसेक्शन को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है. केस क्या था? सो सौरव यादव वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2020 dealt with issue arising from the way different classes of reservation were to be applied in the selection process to fill posts ऑफ कॉन्स्टेबल्स इन दी स्टेट. तो आपको ये नाम ये केस याद रखना है, सुरेश यादव वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये डिफाइन कर दिया कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशंस आर इंटरलिंक्ड. ओके, उनको अलग तरीके से नहीं देखा जाएगा. द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट्स पॉलिसी वॉज टू रेस्ट्रिक्ट एंड कंटेन रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट्स टू देयर कैटेगरीज इवन व्हेन दे हैड सिक्योर्ड हायर ग्रेड्स. तो उसको ओवर रूल्ड करके सुप्रीम कोर्ट ने ये अपना डिसीजन दिया है. एससीज रूलिंग क्या है, जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके. सो द कोर्ट रूल्ड अगेंस्ट द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, holding that if a person belonging to the an intersection of vertical horizontal reserved category had secured scores high enough to qualify without the vertical reservation, the person would be counted as qualifying without the vertical reservation and cannot be excluded from the horizontal quota in the general category. Okay, उसको जनरल कैटेगरी में गिना जाएगा, बट हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन से उसको आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते. द कोर्ट सेड उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट्स आर्ग्यूमेंट मेंट दैट इट वाज एंश्योरिंग दैट द जनरल कैटेगरी वाज रिजर्व्ड फॉर अपर कास्ट. अब ऐसा नहीं है, देखिए ये हमें ऑलरेडी पता है कि अगर कोई SC या ST का कैंडिडेट अगर वो जनरल कैटेगरी में रजिस्टर करवाना चाहे तो ही और शी कैन रजिस्टर, उसके लिए कोई बारिंग वहाँ पे नहीं है. बट अगर कोई जनरल कैटेगरी वाला SC या ST में रजिस्टर करवाना चाहे तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ ओनली अ वन वे स्ट्रीट. सिग्निफिकेंस क्या होगा इसका? सो द रूलिंग विल गिव क्लैरिटी ऑन रिजर्वेशन एंड मेक इट ईजियर फॉर गवर्नमेंट्स टू इम्प्लीमेंट एंड अप्लाई रिजर्वेशन. More needy scheduled caste, scheduled tribes and other backward class candidates will be benefited if high scoring candidates are recruited under जनरल कैटेगरी. अब देखिए यहाँ पे कोई ये नहीं देख रहा है कि जनरल कैटेगरी वाले बच्चों को यहाँ पे उनकी सीट्स कम हो जाएगी अगर SC या ST का जो कैंडिडेट है वो अगर जनरल कैटेगरी में जाकर अपने नाम रजिस्टर करवाता है. उस पर कोर्ट कब सुनवाई करेगा? जब कोई जनरल कैटेगरी का कोई कैंडिडेट जाके केस दाखिल करेगा. ओके, एज ऑफ नाउ दिस इज द सिचुएशन. और ये डिफरेंट आर्टिकल्स है फ्रॉम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो अलग अलग तरीके से रिजर्वेशन के साथ डील करते हैं. तो दिस इज़ जस्ट फॉर योर एक्स्ट्रा स्टफ. एग्ज़ाम में कभी भी डायरेक्टली आपको पूछा जा सकता है कि कौन सा आर्टिकल किस चीज़ के लिए बना हुआ है. ओके, UPSC, GPSC, many are exams nowadays asking direct questions like this. Okay, वन लाइनर भी पूछा जा सकता है और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी आपको इसमें से निकाल कर पूछा जा सकता है. सो दिस इज़ फॉर योर होम स्टडी. और इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर यहाँ पे हम ख़त्म करेंगे. होमवर्क में आपको 2 टॉपिक दे रहा हूँ. फर्स्ट इज़ राष्ट्रीय कामधेनु आयोग एंड दी अदर इज़ जुडिशियल रिव्यू. देखिए जुडिशियल रिव्यू क्यों चर्चा में है, क्योंकि अभी हमने पिछली बार सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस किया था और अभी फार्मर लॉस के लिए भी जुडिशियल रिव्यू का जो एस्पेक्ट है वो हमें सामने आता हुआ दिख रहा है. तो वो जुडिशियल रिव्यू इज एक्चुअली इज़ योर टॉपिक फ्रॉम योर पॉलिटी सब्जेक्ट, बट क्योंकि वो करंट अफेयर्स के साथ जुड़ा हुआ है आपको उसको एक बार रिवाइज कर लेना है. और इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर हम ख़त्म करेंगे.
Till then, stay home, stay safe. Thank you.